I'll be starting first with what is the meaning of the word filter. क्यों भाई फिल्टर को यूज किया जाता है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या करने वाले हैं, पहले ये समझना है. एंड देन विल स्टार्ट विद द टुडेज मॉड्यूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ फिल्टर. ओके, नाउ before I start with the term filter, let me introduce you to a very simple basic circuit comprising of a resistor and a capacitor. Fine. This is resistor R and this is a capacitor C. Fine. To this resistor and capacitor C, we are going to provide input as V in of T, and obviously the output that I will be fetching from this circuit will be termed as V out of T. Fine, as simple as that. That's what we have deduced as of now. Now, in the circuit that we have drawn, if I want to compute the transfer function, the question is find the transfer function of the system. What's the meaning of the word transfer function? TF का मतलब होता है simple language में Laplace of output means V out of T divided by Laplace of V in by T. Okay, it's the meaning of Laplace of V in by T. Okay, in simple terms, this means I need to convert my entire circuit. I need to convert my entire circuit in Laplacian domain so that I can use the terms Laplace of V out and Laplace of V in. So I'll be converting the entire circuit in such a way that I can say that now this will be henceforth called it as V in of S, V out of S, R will be R, and this will be known as henceforth 1 upon SC ohms, because this is now it become as a impedance or a resistance. Fine? Clear so far? So now I can simply say V out of T Laplace is given by now henceforth V out of S, V out of S divided by V in of S. And we can say using potential divider rule, it will be as good as मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा 1 upon SC divided by R plus 1 upon SC using simply potential divider rule. V out के सामने कौन है? V out के सामने है 1 upon SC divided by R plus 1 upon SC. Fine, this is what I have got, and this I call it as a transfer function. There is a definition in transfer function. Initial conditions has to be considered as 0. So I am least bothered whether the capacitor was initially charged or uncharged. I am assuming the charge across the capacitor to be 0. I am assuming the charge across the capacitor to be 0. Why 0, sir? I am assuming why it is 0 because I am telling in case of transfer function, initial conditions are assumed to be 0. Hence, I say that let us assume the capacitor is not at all charged. कभी भी फोन दिया क्या बोलेगा वो 4 घंटा लगेगा फोन चार्ज करने के लिए. He is least bothered whether phone is 80% charged or 0% charged or uncharged. Okay, that's the meaning of that. So I can say TF equal to 1 upon SC divided by R plus 1 upon SC. So we have done so far till date. Then I can say TF equal to, then I can say that TF will be equal to, then I can say that TF will be equal to 1 upon SC, 1 upon SC divided by RSC plus 1 and whole divided by SC. And that gives me answer as equal to 1 upon 1 RC, SRC plus 1. This is what I get as another expression, another form of transfer function in front of us. So I have one form as this one. I have another form as this one. Fine. Now proceeding forward. Now I can say that again TF can be also written as by making this S term coefficient free. If I make this S coefficient free, then I can say I can have
1 upon RC को मैंने बाहर ले लिया, कोएफिशिएंट फ्री कर दिया, तो अंदर क्या बचेगा सर फिर S plus 1 upon RC. Done. That can be written as once again 1 upon RC in the numerator and whole divided by S plus 1 upon RC. The last form of transfer function that I have derived over here. So now I do have three forms of transfer function, which you can see here that I have here now three forms of transfer function deduced in front of you. Fine. The first form you have 1 upon SC divided by R plus 1 upon SC. Second form we have 1 upon SRC plus 1. And third form we have 1 upon RC divided by S plus 1 upon RC. Now I'll be using the third form for our further understanding. I'll be using the third form for our further understanding. So I have the third form written as TF. What is the third form, sir? थर्ड फॉर्म क्या है मेरे पास है, मेरे पे थर्ड फॉर्म जो है वो ये वाला है, जिसका थर्ड फॉर्म आई हैव. ओके, तो थर्ड फॉर्म मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जिसमें थर्ड फॉर्म आई हैव हियर. इट इज द थर्ड फॉर्म आई एम गोइंग टू यूज. आई कैन से द थर्ड फॉर्म इज गिवन एज इक्वल टू TF. फाइन. नाउ इन दिस केस व्हाट अबाउट द न्यूमरेटर? What is about the numerator? In case of numerator, if you see, in case of numerator, I don't have n of s. I mean to say I don't have any term involving s in case of numerator. Fine. So I cannot write directly over that n of s equal to 0 because this expression will be invalid for me. This expression will be invalid for me because in this expression you don't have any term comprising of s in case of numerator. So this expression itself is invalid. So I can say because of this zeros will be a null vector. I don't have zeros at all. Zeros will be a null vector. No zeros are available for this particular transfer function. If you ask me, sir, what will be the case of poles? So for poles, what about the case of poles, sir? What about the case of poles? Poles का क्या condition है? Poles कैसे मिलता है हम लोगों को? For poles, what we do? In case of poles, we make denominator term equal to 0. D of s equal to 0. Also known as the characteristic equation of the transfer function. Also known as the characteristic equation of transfer function. Wherein I can say s plus 1 upon RC equal to 0. Therefore, s equal to minus of 1 upon RC. S equal to minus of 1 upon R. So you can say here, now that means this is meaning that S is equal to minus of 1 upon RC. S equal to minus 1 upon RC. Fine. The poles are denoted by cross. So this is the pole that I have received. Now the question to arise, then what is your say about 1 upon RC, the term available in the numerator? I say that is the gain of the transfer function. That is the gain of the transfer function. So I can say that is the gain, k value. Gain is the k value. The gain is the k value. The gain of the transfer function, that is the k value, is equal to 1 upon RC. Equal to 1 upon RC. This is the parameters that I have deduced as for the transfer function. The first advantage of transfer function. The advantage of transfer function is that using transfer function, we can deduce zeros, pole and gain of the transfer function. Using transfer function, we can derive zeros, pole and gain of the transfer function. Now, I'll be using the zeros, pole and gain in order to plot the what? In order to plot the pole zero map of the transfer function. I want to plot the pole zero map. So I draw the real axis. Then I draw the imaginary axis. So this is what I have drawn over here. So now, my dear friends, this is the sigma value. Fine. This is the j omega value, and we know that if this is 0, then s equal to minus of 1 upon RC. S equal to minus of 1 upon RC will come somewhere over here, and this is indicating cross, and this is your minus of 1 upon RC. The pole of the transfer function. There is no 0 at all. So only pole is there. So I have marked pole over there in the pole 0 plot or the pole 0 map of the given transfer function. Now, what is the meaning of tau? Tau is given by, tau is an entity, it's a variable given by, it is a mod of -1
divided by real part of pole, minus 1 divided by real part of the pole, real part of the pole. Now tell me, what is the real part of the pole? What is the real part of the pole? It is given by minus 1 upon RC. Then simply write over here as minus of 1 upon RC over here. So I can say this will become minus of 1 upon RC, and minus cancel, and I'll be left simply with RC. I'll be simply left with RC. Mod of RC will be equal to RC, and that we call it as a tau. The tau is given by RC. Tau is equal to RC. Fine. So once we have deduced tau equal to RC, you may substitute a tau equal to RC in this expression, and you can say this will be now becoming as 1 upon tau, fine, 1 upon tau divided by S plus 1 upon tau. Because tau value is RC. RC is tau, so 1 upon tau divided by S plus 1 upon tau. It is done, completed till here. Fine. So we have understood till this point, like what is happening, going to happen in this case. Kindly make a note of it. I'll just minimize the entire screen so that it becomes easy to understand what we have done so far. तो अब तक हमने यही सब पार्ट देखा है. Fine. So we have deduced transfer function, the first form, second form, third form, and then using the third form, we have derived zeros, we have derived poles, we have derived gain, we have plotted the pole zero map, and we have derived the value of tau equal to RC. And RC is represented in terms of seconds because it is a time constant. ये already हम लोगों ने देखा था last class में, है ना? यहाँ तक हमने already we have seen. Now I'll be using now the second form of transfer function for my further discussion. This is the first form, this is the second form, and this is third form. हमने अब तक third form को use किया to derive zero, pole and gain. Now I'll be using the second form for my further understanding. Now let's talk with the second point or the second concept, like how the things are going to happen in this scenario now. So I'll come over here. I'll be using the second वाला section. अब मैं इसको use करने वाला, ये portion को use करेंगे पूरा, ठीक है? I'll be going to use this. Fine. So now let me show you this particular portion, like how will happen in this scenario now. So now I have here as TF is equal to 1 upon TF is equal to, क्या है हमारे पास में सेकेंड फॉर्म क्या है, 1 upon 1 plus SRC. Yes or no? This is second form that I have, 1 upon 1 plus SRC. Kindly have a look over here. This is 1 upon SRC plus 1. 1 upon SRC plus 1 can be written as 1 upon 1 plus SRC. 1 upon 1 plus SRC. So I'm going to write same thing over here. I'll be writing over here as 1 upon 1 plus SRC. 1 upon 1 plus SRC. Now, over here, I'm going to substitute, put S equal to, I'll do one thing, I'll clear the canvas, it will be lagging somewhere. Okay. क्या था हमारे पास में, you are having TF equal to 1 upon 1 plus SRC. Done? Now, what's the value of S? Put S equal to, what is S value? Can you help me out, sir? What is S value? What is S value? Omega, sir. What is S value? Sigma plus J omega. Exactly, sigma plus J omega. The S value is sigma plus J omega. If I'm only concerned with analysis, if only analysis is my goal, then what I'm supposed to do? Sigma equal to 0. बराबर ना, तो Fourier की बात होने वाली यहाँ पे. I can say simply then S equal to J omega. Have you understood this or not? What I've done here? I'm only concerned about analytical part. I only want to analyze that given RC circuit. So over there, I'm considering sigma equal to 0. The moment I put sigma equal to 0, I'm only left with what? S equal to
जे ओमेगा, बिकॉज आपका सिग्मा जो पार्ट था वो पूरी तरीके से जीरो हो चुका है। ये वाला पूरा पार्ट जो था आपका ये पूरी तरीके से जीरो हो चुका है। इस एंटायर पार्ट इज जीरो था। ये लेफ्ट इज इक्वल टू जे ओमेगा। नाउ आई स्टूडेंट्स आई वांट यू टू सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू s as j omega over there. So I want you to substitute s as j omega over there. So what will happen? You'll get this on substitution. Fine, done. Now pay attention. Just I'll draw your attention over here. I have a complex number given by a plus jb. So tell me for a plus jb what will be the magnitude and what will be the phase for over here. What will be the magnitude? Yes, the magnitude will be given as under root of a square plus b square. And what phase? The phase is given by tan inverse of imaginary by real. Who is imaginary? B is imaginary. A is real, given by b by a. B by a. That will be the magnitude and phase as far as concerned. Now, same way, if you look over here, one can be written as 1 plus j0. Fine. So now you have one complex number in the numerator, another complex number in the denominator. Tell me what will be the magnitude and phase for both the cases. What will be the magnitude for the first case? 1 plus j0. The magnitude will be 1 and angle will be 0 degree. Do you agree with this or not? For the first case, magnitude will be 1 square 1 plus 0 square 0, 1 plus 0 1, root ka 1 is 1. Fine. Angle 0 because it will be on the real axis. Angle will be 0. What about the second case, sir? What will be the magnitude? Square root of 1 square plus omega square r square c square. R square c square. This will be the magnitude. What about the phase, sir? What about the phase? What will be the phase for this? क्या phase होगा सर? यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ. It will be given as 1 plus omega square r square c square. What will be the phase angle? तो आपने बिल्कुल सही बोला. The phase will be given by angle of tan inverse of बोलिए imaginary by real. तो कौन है भाई यहाँ पे imaginary? ओमेगा आर सी. तो इमेजिनरी है आपका ओमेगा आर सी divided by 1 because real component is 1 in that case. Now just pay attention. Now my dear friends, you have this is the magnitude for overall, yes, and this is the phase overall. Can be written as overall equal to, overall can be written as, transfer function can be written as in the polar form, it will be given as 1 upon under root of 1 plus omega square r square c square complete. एंगल डिवाइड है करके माइनस करने का 0 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ ओमेगा आर सी. Tan inverse of omega RC. Have you understood till here or not? Online students, any question over here? क्या चल रहा है? कैसे किया? ये हमारा Understood, sir. function आपके सामने रेडी हो गया. Fine. Now, sir, let me ask a question to you. That if I have what do I have? I have, for example, if I say that now. Two cases I'm going to consider. Case number 1 will be, for example, that case number 1 क्या होगा? Now, सुनिए यहाँ पे क्या क्या लेना है मुझे. I want everything is dependent. अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, हर चीज मैग्नीट्यूड हो या फिर फेज हो, किस पर डिपेंड करता है? ओमेगा पर. अग्रीड. किस पर डिपेंड किया? ओमेगा पर. आर कौन बताएगा आपको? दीपाली मैडम. तुम नहीं रहे, सामने वाली. फाइन. ओमेगा आर कौन बताएगा आपको? दीपाली मैडम. क्या बोलेंगे? आर 1K 2K 5K 10 किलो ओम्स.
सी कौन बताएगा? अगेन तुम नहीं रहे, दीपाली मैडम क्या बोलेंगे? सी 10 माइक्रो 1 नैनो वॉट। तो आरसी आपको एग्जामिनर दे देगा, या आरसी आपको सिस्टम का खुद का एट्रीब्यूट सबको पता है कि आर इतना है, सी इतना है, उसके बारे में दिमाग लगाने का मतलब ही नहीं है। तो वहां पे वेरिएबल कौन है? केवल ओमेगा है, ओनली ओमेगा इज ए वेरिएबल। सो आई राइट हियर दिस इज ओमेगा, फाइन, दिस इज ओमेगा। नाउ दिस इज m and this is phi. Now my dear friends, help me out. If omega is 0, extreme case, and if omega is infinity, what will be the value of m and phi? बोलिए सर, what will be the value of m and phi? ओमेगा 0 का मतलब क्या होता है? What is omega? If you know, omega is given by 2 pi f. Yes or no? ओमेगा 0 मतलब फ्रीक्वेंसी इज 0 हर्ट्ज, डीसी सिग्नल। ओमेगा इंफिनिटी का मतलब ये होता है फ्रीक्वेंसी इज इंफिनिटी, गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, हंड्रेड्स ऑफ गीगाहर्ट्ज, ऐसा हाई फ्रीक्वेंसी आपने दिया है, इतना हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आपने दिया है। तब मुझे बताइए, अगर ये जो 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 अपना सर्किट था छोटू सा आर सी वाला, ये सर्किट को अगर आप देते हो क्या, अगर आप इनपुट में देते हो वी इन इक्वल टू 10 sin omega t, yes or no? What's 10 amplitude? What is omega frequency? 10 sin 100t, 10 sin 1000t. So the 100,000 implicates frequency. So what will be the output? What will be the magnitude? That's what I'm asking to you. If omega equal to 0, what will be the answer, sir? 1 upon 1 plus 0. So 1 upon 1 plus 1 upon 1, 1 upon 1, 1 upon 1. I hope you all agree to this. It will be 1 over here. Online students, I hope you agree it is 1. Yes or no? Fine? Yes, sir. Now, Yes, sir. tell me for phi now. Tell me for infinity case now. Infinity का बताइए कितना होगा? 1 upon 1 plus infinity. 1 plus infinity, infinity 1 over infinity 0. Very good बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने। अब मुझे एंगल बताइए आप, एंगल कितना होगा? tan इनवर्स ऑफ 0, tan इनवर्स ऑफ 0 0। क्यों बेटा? tan 0 0 होता है, sin 0 0, cos 0 1, 0 upon 1 0, खत्म। इंफिनिटी sin 90 कितना होता है? 1, cos 90 0, 1 upon 0 इंफिनिटी। तो मतलब यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे 90 डिग्री। लेकिन बेटा यहाँ पे माइनस साइन भी है साथ में, दुमची बना के रखा है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन लगाना जरूरी है। समझा आपको? नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव ड्रॉन माय टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल। नाउ यू टेल मी व्हाट विल बी द ग्राफ। अब कहानी आती है ग्राफ की। अब इसका अपने को ग्राफ बनाना है। कैसे बनाओगे इसका ग्राफ सर? हाउ विल यू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस? हाउ विल यू ड्रॉ द ग्राफ? हाउ विल यू ड्रॉ द ग्राफ? सुनिए ध्यान से, अब स्टोरी में और ट्विस्ट आने वाला है और पूरा चिट्ठा आपके सामने क्लियर होगा। सर यहाँ पे मैं लेने वाला हूं ओमेगा, यहाँ पे मैं लेने वाला हूं मैग्नीट्यूड, और यहां पर मैं लेने वाला हूं फेज, और यहां पर भी लेने वाला हूं ओमेगा। मेरे भाई अभी ये है 0 और ये है इंफिनिटी, ये है 0, ये है इंफिनिटी। बताइए मैडम जी कितना होगा 0 पर? 1, 0 पे 1। वेरी गुड बेटा। इंफिनिटी पे 0। क्या करने का? नाउ आई हैव 2 पॉइंट्स, 1 ओवर हियर, 1 ओवर देयर। 2 पॉइंट है मेरे पास में सर। क्या करने का? डायरेक्ट जोड़ दूं ऐसा लाइन बना के? कैसे जोड़ेंगे हम लोग? You require some intermediate points. So now you can do one thing. You can take your calculator in your hand, take calculus in your hand, all of you, and tell me what is the value you're getting for omega equal to 1, 5, 10, 100, 1000, so that you can say, okay, now when m is 0, it is 1. When it is 1, this is the value. When it is 5, this is the value. When it is 10, this is the value. When it is, and then you will get a graph like this. You will get a graph like this. Verify, sir. Verify at your end. Do not trust me blindly. You should verify.
I want you to verify. Tell me what graph do you get? You will get a graph something of this kind. ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा आपको. चेक करिए सर क्या ग्राफ आया, क्या ग्राफ आया, चेक करिए क्या ग्राफ आता है. What graph do you get? Yes, क्या ग्राफ आया सर? You will get graph like this, sort of. You will get a graph like this. इसको अगर मैं थोड़ा लिमिटेशन लगा देता हूँ यहाँ पे मैं, if I write here x lim and from ranging from 0 to 2, for example, 0 to 2, I will get this as the graph in front of us. ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा आपको. ये देखिए सर, यहाँ पे आप देख सकते हो, at 0 I'm getting 1, fine, and as I start moving further, I get like graph like this. Yes or no? Got it sir? Now सबको ग्राफ ऐसी आया है, सबको ग्राफ ऐसी आया है, something of this kind. Now you have got this graph. Madam, what about the angle? क्या आया था एंगल आपको? What about the angle? What about the angle? 0 पे, सॉरी 0 पे 0, 0 पे 0, 0 पे 0, इंफिनिटी पे कितना ग्राफ आता है? -90, somewhere over here. Again, you can substitute the value of different omegas and you will get like this. You will get graph like this. Check it out. You will get a graph like this. Fine. This is the magnitude response. This is the magnitude response. And this is the phase response. This is the magnitude response and नीचे वाला जो phase response है. देखने वाली बात ये है कि यहां पे मैंने x एक्सिस पे टाइम नहीं लिया है, यहां पर मैंने x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी लिया है. Very, very important. On x axis I have taken frequency. This is the graph drawn in. This is the graph drawn in frequency domain. This is the graph not drawn in time domain. ये टाइम डोमेन वाला ग्राफ सर, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला ग्राफ है, बिकॉज मैंने फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज किया है. फूरियर ट्रांसफॉर्म किस लिए यूज करते हैं? टू गो फ्रॉम टाइम टू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला मैंने ग्राफ पे प्लॉट करके आपको दिखाया है. Have you understood this graph or not? Yes, understood. यहाँ पे ये समझता है कि 0 पे 1 आया और इंफिनिटी पे 0 आया. ओके, forget about the phase as of now. अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो कि मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स भी प्लॉट किया है, फेज रिस्पॉन्स भी प्लॉट किया है. वो डायग्राम, वो ग्राफ जहां पे मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स और फेज रिस्पॉन्स ऊपर नीचे प्लॉट किया जाता है, ऐसे ग्राफ को बोला जाता है बोडे प्लॉट. ऐसे ग्राफ को बोला जाता है बोडे प्लॉट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोडे प्लॉट? बोडे प्लॉट इज व्हाट? मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स प्लस फेज रिस्पॉन्स. मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स प्लस फेज रिस्पॉन्स इज नोन एज बोडे प्लॉट. BODE, बोडे प्लॉट. फाइन, ओके. हैव यू अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट? यस सर, अंडरस्टूड. यहां तक समझा था हम लोगों को, क्या किया हम लोगों ने. नाउ सर यू कम ओवर हियर. वेयर? अब क्या करना है? अभी कहानी में और ट्विस्ट आने वाला है. सर आपको मैंने बताया, यहां तक हमने किया. नाउ यू टेल मी सर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोल? व्हाट इज पोल सर? पोल की वैल्यू कितना है? S इक्वल टू पोल -1/RC. बिल्कुल सही बोला आपने सर. द पोल वैल्यू इज -1/RC. यस और नो? आई होप यू ऑल अग्री टू इट. सर व्हाट इज S वैल्यू? J ओमेगा. J ओमेगा इक्वल टू -1/RC. J ओमेगा इक्वल टू -1/RC. ये फूरियर के वजह से हो गया J ओमेगा, और ये पोल की वैल्यू -1/RC.
what is the magnitude of j omega? What is the magnitude of j omega, sir? ओमेगा, आई होप यू अग्री टू इट। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड ओमेगा होगा। सर सवाल उठ गया, सर कैसे ओमेगा हो गया? सिंपल है सर, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि ये मैंने पे एक्सिस ड्रॉ किया और मुझे पता कि अगर मुझे प्लॉट करना है J10 वैल्यू, कौन सा वैल्यू प्लॉट करना है सर? J10। किधर प्लॉट करूंगा मैं J10 on the y-axis and this is the value J10. Fine, J10 na sir, J10. Now you tell me what is the distance of point J10 from origin? 10. That is the meaning of magnitude. The magnitude of J10 is 10. उसी प्रकार से J ओमेगा का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ओमेगा होगा। ओमेगा आप डिसाइड करोगे, 0 रखना है, 10 रखना है, 100 रखना है या इंफिनिटी रखना है, या आप डिसाइड करोगे। समझा यहां तक? तो यू हैव रिटन ओमेगा ओवर हियर। सिमिलरली कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1/RC फ्रॉम ओरिजिन? +1/RC, बिकॉज यहां पे डिस्टेंस की बात होने वाली है सर। 1/RC, so I can say omega will be equal to 1/RC. Omega equal to 1/RC. Fine. Now you pay attention sir. अब क्या होगा? यहां तक समझ गया? ओमेगा इक्वल टू 1/RC। अभी भाई एक काम करिए, ये ओमेगा इक्वल टू 1/RC कहीं भाग ना जाए, इसलिए इसको आप डब्बे में डाल दीजिए। कहीं ये भाग ना जाए, इसको आप डब्बे में डाल दीजिए। पुट इट इन अ बॉक्स सो दैट ओमेगा इक्वल टू 1/RC डोंट फ्लाई अवे। नाउ ओमेगा इक्वल टू 1/RC जो वैल्यू आपको मिला, जो आपने प्रोक्योर किया, उसको लेकर आइए, उसको डाल दीजिए यहां पर। ओमेगा इक्वल टू 1/RC। क्या आंसर आएगा सर मैग्नीट्यूड का? क्या आंसर आएगा? अगर आप बोलते हो कि नाउ माय ओमेगा इज 1/RC, तो क्या मिलेगा आपको? 1 ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या होगा? ओमेगा का डाल दिया आपने 1/RC, 1/RC, ओमेगा बन गया। क्या बन गया नमो? ओमेगा क्या बन गया? 1/RC। तो क्या हो जाएगा? ओमेगा 1/RC रखा तो 1/R²C², 1/R²C² मल्टीप्लाइड बाय पुराना वाला। पुराना क्या था? R²C²। चल गेट आउट। क्या बचा आपके हाथ में? 1/, क्या बचा सर आपके हाथ में? मजा आने वाला है, तबीयत खुश होने वाली है सर, एंजॉय करोगे मेरे साथ में। 1/√2। व्हाट इज 1/√2? क्या बात है बेटा, 1/√2 होता है 0.707। 0.707। अभी काम करिए, टेक आउट योर कैलकुलेटर्स, वहां पे डाल दीजिए 20 log of 0.707। टेल मी द आंसर सर। मैं आपको पूछता हूं, अगर मैं कहता हूं 20 log of 0.707 क्या होगा? क्या आंसर आएगा? माइनस ऑफ 3.010 dB, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस ऑफ 3 dB। याद रखिए इसको। समझा? अभी सुनिए सर, और समझने वाले क्या कहने की कोशिश कर, और क्लैरिटी मिलने वाला है आपको यहां पे। सर यहां पे क्या हो गया पता है आपको? मैंने बोला कि जब मेरा ओमेगा 0 है तो कितना वैल्यू है? 1 है। ओमेगा 0 है तो वैल्यू 1 है। ओमेगा 0 है तो 1 है। मतलब अगर मैंने 5 वोल्ट का डीसी सिग्नल इनपुट दिया जिसका फ्रीक्वेंसी 0 है, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 5 वोल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका गेन 1 है। समझा सर क्या बोला मैंने? अब मैं बोलता हूं कि अब मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं। 0 से कहां तक आ गया? मैं आ गया अभी ओमेगा पर। कौन सा वाला ओमेगा? जहां पे 1/RC मिला था। वो ओमेगा 1/RC मिलने के कारण क्या हो गया पता है आपको? 1/RC ओमेगा आने के वजह से आपका मैग्नीट्यूड थोड़ा कमती हो गया। कितना कम हो गया? कितना कम हो गया? 0.707 हो गया। कहां 1 और कहां 0.707? समझा आपको? कितना लॉस हो गया सर? कितना लॉस हो गया?
अगर डीबी की भाषा में बात करें तो 3 डीबी का लॉस हो गया। किधर लॉस हो गया? जब आपने ओमेगा 1 अपॉन आरसी रखा। ओमेगा 1 अपॉन आरसी रखने पे क्या हो गया? गेन कम हो गया, गेन कट हो गया। इसके लिए ओमेगा को बोला जाता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो कट कर देता है वहां पे। क्या आया सर? ओमेगा ओमेगा कट ऑफ क्या आया? 1 अपॉन आरसी। ओमेगा कट ऑफ, द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन आता है, द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट फ्रीक्वेंसी वेयर द गेन रिड्यूसेस टू 0.707 ऑफ द मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों बोला सर? मैक्सिमम कितना है? 1 है। काय को 1 नहीं बोलते? फिर काय को 1 नहीं बोलते? काय को 1 नहीं बोलते? 1 बोलो ना। Yes, any idea, any intelligent student over here, why I'm not keeping it 1? Why did I made such kind of statement? सिंपल है, मैं बोलता हूं ओमेगा कट ऑफ इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वेयर द मैग्नीट्यूड विल बी रिड्यूस्ड टू 0.707 ऑफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। So what is the maximum amplitude? It is 1. Then why don't you call it as 1 to make the thing simplified? Why we call it as maximum amplitude? कैसे हो सकता है सर? हाईएस्ट तो 1 आया ना, अभी आपके सामने है सर, 0 पे 1, 0 पे 1 आपके सामने। देन व्हाई डोंट यू मेक कॉल इट एज 1? व्हाई यू कॉल इट एज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड? आरसी के साथ में अगर कैस्केड में एम्पलीफायर लगा दिया तो क्या होगा? गेन बढ़ेगा। मतलब क्या बोला मैंने आपको मेरे भाई? मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपने ये आरसी के साथ में इन केस आप बोलते हो नहीं भाई रुक जा, मुझे 1 नहीं चाहिए, आई वांट गेन ऑफ 10। ओके बेटा, यू वांट गेन ऑफ 10, तो एक काम कर, कसम बे सर को बुला दे, उनको बोल मुझे एक एम्पलीफायर चाहिए करके लगा दे एम्पलीफायर, खत्म। क्या बन जाएगा फिर वो? एक्टिव फिल्टर बन जाएगा वो। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे ओपैम्प लगाया है। अगर ओपैम्प नहीं लगाता हूं तो क्या बन जाएगा वो? पैसिव फिल्टर। अंडरस्टूड और नॉट सर? नाउ आप अभी आप इधर आइए, कम ओवर हियर। क्या सीखने को मिला यहां पे? जब आपने फ्रीक्वेंसी कितना रखा? कट ऑफ कितना हो गया? कितना हो गया वो? 0.707। सर अभी काम करिए, यू कम ओवर देयर। कौन था वो भाई? उसको डब्बे में डाला था कि भाग ना जाए। कौन था वो? ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन आरसी। ये वो ओमेगा है जहां पे आपका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? 0.707। दैट ओमेगा वी कॉल इट एज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कसम बे सर उसको नया नाम देने वाले कल बोलेंगे, क्या बोलेंगे मालूम? वो बोलेंगे कि ये देखो यहां पे मैग्नीट्यूड 1 था, फिर मैग्नीट्यूड कम 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 होना शुरू हो गया, यहाँ पे कोना खापचा मिल गया, यहाँ पे कोना मिल गया। ये कोना मिला करके क्या बोलने का इसको? कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। कल सिखाने वाले कसम बे सर फिल्टर्स, उसको वो बोलेंगे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। मैंने क्या बोला? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब कट ऑफ बोलिए, कॉर्नर बोलिए, दोनों और सेम। समझा आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग विद दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नाउ मेरा डियर फ्रेंड्स, नाउ यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमेगा? ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ कट ऑफ, 2 पाई एफ कट ऑफ इक्वल टू 1 अपॉन आरसी। तो व्हाट विल बी एफ कट ऑफ देन? 1 upon 2 pi RC। तो एक काम करिए, टेक इन योर नोटबुक, ओमेगा कट ऑफ इक्वल टू 1 upon RC रेडियन पर सेकेंड। देयरफॉर एफ कट ऑफ इक्वल टू 1 upon RC हर्ट्ज। वेरी गुड बेटा, इसको बोलने का रेडियन पर सेकेंड और ये भाई साहब को बोलने का हर्ट्ज। क्योंकि अब 2 पाई जो है वो उठकर कहां आएगा? वो 2 पाई जो है वो उठ के आ जाएगा यहां पे। ये जो 2 पाई था ये अभी उठकर आ जाएगा यहां पे। ये 2 पाई जो था यहाँ पे, अपने जो 2 पाई जो बनाया था, ये 2 पाई को अब मैं लेके यहां आने वाला हूं। समझा आपको? कम ऑन फास्ट, मेक अ नोट ऑफ दिस क्विकली। ये 2 पाई जो साहब थे भी उठ के यहां आने वाले हैं। एफ कट ऑफ इक्वल टू 2 पाई आरसी।
Take down a question. Tell me what will be the value of R and C so that F cutoff equal to 5 kilohertz. F equal to 5 kilohertz चाहिए आपको. कट ऑफ कितना चाहिए अपने को? 5 किलोहर्ट्ज. C वैल्यू अज्यूम करिए. सिलेक्ट C इक्वल टू 10 नैनो. सिलेक्ट C इक्वल टू 10 नैनो. कल किया था चिराग ने क्वेश्चन, है ना चिराग? वी डन यस्टरडे. F कट ऑफ लीजिए आप. अपने को एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है ताकि वो 5 किलोहर्ट्ज पे कट करे. कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपका कितना रहने वाला है? 5 किलोहर्ट्ज. आपने C अज्यूम किया. C को आपने डिसाइड किया कि मैं C फिलहाल के लिए 10 नैनो फैराड ले लेता हूं. तो आप मुझे बताइए अब मेरा R कितना होगा. सो दैट दिस कंडीशन, दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज. कितना आया था? एग्जैक्टली. तो R आपको आया था, चिराग भाई को R आ गया है 3.1919 किलो ओम्स. स्टैंडर्ड वैल्यू 3.2 किलो ओम्स. स्टैंडर्ड वैल्यू 3.2 किलो ओम. अगर आप चले जाओ तो दीपाली मैडम को जाके बोलोगे मैडम आई वांट अ रजिस्टर ऑफ 3.18 किलो ओम. बोलेगा ऐसा कुछ नहीं है, 3.2 अवेलेबल है, 3.2 लेके जाओ. तो आप 3.2 के किलो ओम लेकर घर पे आते हो. ठीक है. नाउ यू टेल मी, नाउ यू सब्स्टिट्यूट 3.2k in this formula. Tell me the new cutoff. Now you substitute 3.2k. 3.2k is available in the department. You won't get 3.18, 3.19. So what will be the new cutoff for C equal to 10 nanofarads? 4.99 समथिंग मिलेगा आपको, क्योंकि आपका R थोड़ा स्लाइटली बढ़ गया है. Guys, please be fast. कितना आया? 4.97 kilohertz. Fine. This is what the answer that we'll be getting over there. Now, my dear friends, just try to look over here. ये आपको मैंने ऑलरेडी शेयर किया है. कहां शेयर किया है? आपके व्हाट्सएप पर. एवरी सर्किट एक सॉफ्टवेयर है, ऐप एक है एवरी सर्किट. उसके अंदर मैंने सर्किट ड्रॉ किया था. आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो. ब्लैक कलर का ब्लैक वाला इमेज. फाइन. वहां पे मैंने क्या किया है, मैंने इनपुट दिया 5 वोल्ट. कितना इनपुट दिया मैंने? 5 वोल्ट. फ्रीक्वेंसी कितना रखा? 5 किलोहर्ट्ज. क्या आउटपुट आना चाहिए? इनपुट 5 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज. व्हाट शुड बी द आउटपुट सर? कितना आउटपुट होगा? 0.707 ऑफ मैक्सिमम. कितना है मैक्सिमम? 5. तो 5 इंटू 0.707 कितना होता है बताइए सर? 3.55. चेक करिए सर व्हाट्सएप के ऊपर. चेक व्हाट्सएप के ऊपर मैंने लिखा है वहां पे. चेक, प्रैक्टिकली वेरीफाई करके दिखा रहा आपको मैं. 5 वोल्ट इनपुट दिया, कितना आया आउटपुट? 3.5. देखा आपने व्हाट्सएप पे दिया है वहां पर. एवरी सर्किट में जाकर चेक कर सकते हो. मुझे कितना आया? 3.55. क्या बात है सर. पूरा दिमाग क्लियर हो गया, पूरा चीज समझ गया सर. देखिए आप नाउ सी द स्टोरी ओवर हियर. मिला आपको 5 किलोहर्ट्ज. you see the media, you see that image file. 5 kilohertz, 5 volt, 5 kilohertz. आप दिखाई इसको ट्विस्ट करके चिराग. हाँ, yes, correct. Can you just raise your phone so that others can see if they want to, like you are talking about this image. बराबर मिला सबको इमेज है. फाइन. मिला आपको 5 वोल्ट, 3.55. यहाँ पे वेरीफाई हो गया. अभी सर यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था. मैं ये बोल रहा था कि जब आपने 0 दिया तो आपको कितना मैग्नीट्यूड मिलेगा? 1. 5 1 5 डायरेक्ट. समझा? अगर मैंने यहाँ पे दिया फॉर एग्जांपल 2, कितना मिलेगा? थोड़ा कम 5 से. लेकिन अगर मैं 5 किलोहर्ट्ज तक लेके जाता हूं तो कितना मिलेगा? 3.55. फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दिया 10 किलोहर्ट्ज. क्या होगा? और कम होगा. 100 किलोहर्ट्ज, 100 गीगाहर्ट्ज, 0. तो इससे यह साबित होता है कि वो लो फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करता है, लो फ्रीक्वेंसीज को पास करता है और
जो हाई फ्रीक्वेंसीज है उनको साला ब्लॉक करता है, स्टॉप करता है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर। स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? क्या क्या मैंने यहां पे? फाइन। नाउ अभी आप यहां पर आइए, पे अटेंशन। क्या बोला मैंने? मेरे पास में ट्रांसफर फंक्शन 3 टाइप का था। कौन सा सर? पहला वाला कौन सा था? आई चेंज द कलर फॉर यू। पहला वाला कौन सा था? इफ यू कैन यू हेल्प मी आउट सर? पहला वाला कौन सा था? 1 अपॉन आर सी डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 अपॉन एस सी। हाँ, एक सेकेंड आई डू वन थिंग फर्स्ट, आई क्लियर बिकॉज इट बिकम डिफिकल्ट टू राइट नाउ। अभी लैग करना शुरू किया उसने। ओके, नाउ TF इज इक्वल टू, क्या बोला सर आपने? 1 अपॉन एस सी। बोलिए सर, हेल्प मी आउट प्लीज। 1 प्लस 1 अपॉन एस सी। दूसरा बोलिए ना सर, क्या बोला? 1 अपॉन आर एस सी प्लस 1। 1 अपॉन आर एस सी प्लस 1। यस, अग्रीड सर? यस, ओके, अंडरस्टूड। नाउ कैन, हाँ, फिर सुनिए यहां पे मैं क्या करता हूं। मैं यहां पे आरसी को कॉमन ले लिया तो वो बन गया आरसी, यस और नो, एस प्लस 1 अपॉन आरसी, है ना? ये हम लोगों ने किया था। डू यू अग्री टू दिस और नॉट? फाइन। एंड देन I can write like 1 upon RC. S can be written as J omega, fine, plus 1 upon RC. समझा क्या क्या मैंने? Okay, I'm just trying to derive something over there. This can be further written as 1 upon RC divided by J omega plus 1 upon RC equal to omega C। ओमेगा सी कहां से? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी? 1 अपॉन RC। ओमेगा सी डिवाइडेड बाय J ओमेगा प्लस, बोलिए सर, ओमेगा सी। क्या बात है, समझा आपको क्या बोला मैंने? अब मैं बोलता हूं आई हैव ओमेगा सी डिवाइडेड बाय ओमेगा सी प्लस J ओमेगा सी, सॉरी J ओमेगा, रियली सॉरी टू J ओमेगा। यस और नो? अग्रीड टिल हियर? फाइन। नाउ अभी आगे जाइए। एनी क्वेश्चन ओवर हियर? एनी कंफ्यूजन? क्या चल रहा है? अब ओमेगा सी को अब कॉमन लीजिएगा। ओमेगा सी न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में ओमेगा सी पूरा कॉमन ले लिया। क्या बचेगा सर? 1 प्लस J ओमेगा अपॉन ओमेगा सी। कोई महान लोग बोलते सर अभी काम करिए, ओमेगा ओमेगा कैंसल, खत्म। डोंट डू प्लीज। ओके, फाइन। ओके, नाउ done till here? Yes, but you can do one thing, you can cancel omega c. That can be done. So I can write like, now I have 1 upon 1 plus j omega upon omega c. Tell me the magnitude of this condition now. आगे हम लोग पहुंच गए यहां तक। अब मुझे बताइए आप, इक्वेशन को डब्बे में डाल दीजिए, बहुत काम का है। आगे का पूरा फिल्टर सिर्फ इस पे चलने वाला है। आगे का पूरा फिल्टर ये एक्सप्रेशन को लेके चलने वाला है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट। आगे का पूरा फिल्टर का पूरा चैप्टर
ये एक्सप्रेशन पे डिपेंड करने वाला है। समझा यहां तक क्या किया? ओके सर, अंडरस्टूड। अभी आगे बढ़िए। क्या बनाया था सर? ग्राफ कैसे बनाया था? सर मैंने ग्राफ जो बनाया था वो कुछ इस प्रकार का बनाया था, है ना? आप चाहे तो यहां पे देख सकते हो। सर यहां पे मैंने क्या लिखा, जस्ट पे अटेंशन। h इज इक्वल टू 1 अपॉन, दिख रहा है आपको? h इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सर काय को ऐसा लिखा? रीजन है सर, रीजन है। रीजन ये है, मैं ये पकड़ के चल रहा हूं कि ओमेगा सी इक्वल टू 1। If I assume omega c equal to 1, then I can have 1 upon 1 plus j omega. तो I am normalizing, वर्निश में ध्यान दीजिए, I am normalizing कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा c equal to 1। लिख लीजिए नोटबुक के अंदर, 1 upon 1 plus j ओमेगा, 1 upon 1 plus j ओमेगा। ओमेगा c को आपने 1 assume किया। पीपी लाठी में बुक क्या लिखा है मालूम? नॉर्मलाइजिंग ओमेगा सी इक्वल टू 1, ऐसा वर्ड लिखा है। बोला नॉर्मलाइजिंग ओमेगा सी इक्वल टू 1, देयरफॉर 1 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा। समझा यहां तक? डन। और फिर वो भाई साहब जो है वो इसके आगे बढ़ते हैं, बोलते देखो ये हो गया मैग्नीट्यूड के लिए। मैग्नीट्यूड नहीं लिखा हम लोगों ने, ये मैग्नीट्यूड है। ओमेगा सी इक्वल टू 1, तो ओमेगा सी अगर 1 हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट कट हो जाएगा। क्या बचेगा सिर्फ आपके हाथ में? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये देख मेरे भाई, मैंने वही लिखा है यहां पर, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा मैंने लिया है 0 से 10 तक, और इसको मैं प्लॉट कर रहा हूं विथ रेड कलर। और ये देखिए फिगर आपके सामने आ गया। कितना बोला ओमेगा सी? 1 कौन बोला? अज्यूम किया और नॉर्मलाइज किया। क्या आया 1 पर वैल्यू? 0.707 आ गया। समझा? प्रैक्टिकली वेरीफाई करके दिखवाया। डन सर। अब देखिए सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो पास फिल्टर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो पास फिल्टर? क्या होता है भाई लो पास फिल्टर का मतलब? लो को अलाउ करने का और हाई को ब्लॉक करने का। तो आपने बोला क्या? आपने बोला कि 1 के पहले अलाउ, 1 के बाद में स्टॉप। 1 के पहले अलाउ, 1 के बाद में स्टॉप। समझा यहां तक? तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्या किया मैंने? 1 के पहले अलाउ करना था ना। चिराग आया, बोला आ बैठ जा। श्रुतिमन आया, बोला आ बैठ जा। निधि आई, बोली आ बैठ जा। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? श्रुतिमन आया तो बोला बैठ जा, निधि आई तो बोला वेट, कम आफ्टर 5 मिनट्स। काय को पार्शियलिटी किया? क्यों आप पार्शियलिटी करके दिखा रहे हो यहां पे? व्हाई योर गेन इज नॉट 1 फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो कट ऑफ? समझा क्या बोला उसने? Why your gain is not 1 consistently? Why it is dropping down? काय को आपने ड्रॉप किया? और एक चीज बोला सर स्टॉप बैंड में क्या होना चाहिए? नहीं आने का, दरवाजा बंद हो गया, सबानो बन गया। नमो या 9:20 को आजा भाई, 9:20 को दीपावली है, 8 माता। सर ये क्या है? चीटिंग क्यों करते हो? Why your gain is not 0 consistently? पॉसिबल है क्या ऐसा? पॉसिबल है क्या ऐसा? पॉसिबल है क्या ऐसा? क्यों नहीं पॉसिबल है? ये है रेड कलर वाला जो ग्राफ, इसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर। इसको क्या बोलने का सर? इसको बोलने का आइडियल लो पास फिल्टर। क्या वर्डिंग यूज किया है? आइडियल। और एक वर्डिंग यूज किया सर,
ये मुझे कल कसम्बे सर ने बताया। बोला अरे वाह क्या वर्डिंग्स है। बोले सर ये देखो ये एक ईंट का शेप लगता है, यू नो ईंट, ब्रिक 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 ब्रिक, इट लुक्स लाइक अ ब्रिक, हेंस आल्सो नोन एज ब्रिक वॉल फिल्टर। बोला वाह क्या वर्डिंग्स है यार। Yesterday I was there till 10 o'clock in this college with Kasambe sir, discussing on filters. बिकॉज फिल्टर वो भी सिखाने वाले कल। उन्होंने बोला आप साथ में पढ़ाएंगे आपको, मैं सिखाऊंगा यूजिंग ओपैम, आप फिल्टर सिखाओ यूजिंग सिग्नल। विल वर्क टुगेदर इन म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन टू अचीव अ गोल कॉल्ड अ सिस्टम। तो कुछ कंसेप्ट मुझसे पता चले कि अच्छा इसको ब्रिक वॉल भी बोला जाता है। फाइन। नाउ बच्चा एकदम चिढ़ गया, सर बोले ये ऐसा कैसे होता है, आइडियल इतना डिफरेंस। एक काम करिए सर, व्हाई डोंट यू इंक्रीज द पावर, द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर। कैसे ऑर्डर इंक्रीज करूंगा मैं? अब मैं ये पूरा यहां पे जाके इसको अनकमेंट कर देता हूं, रन करके दिखा दो। सुनिए सर क्या होगा यहां पे, जस्ट पे अटेंशन, वेरी विल स्टॉप। क्या बात, रेड कलर फर्स्ट ऑर्डर, ब्लू कलर सेकंड ऑर्डर, ग्रीन कलर थर्ड ऑर्डर, पिंक कलर 100th order. If you increase the order, you will start coming more closer to ideal. क्या किया मालूम उसने? वो बोलता है कि सर ये फॉर्मूला जो है ना, ये 2 मत रखिए, यहां पे कर दीजिए 2 into n. n is 1 2, n is 2 4, n is 3 6। तो मेरे भाई मैंने यहां पे वही लिखा है, आपको दिखा देता हूं मैं। देखिए कल का काम है ये, दिस आई वाज डूइंग यस्टरडे, आई रोट दिस कोड विद कसम्बे सर। ऑब्वियसली नॉलेज है बंदे को, प्रॉब्लम ये इज नॉट एबल टू शेयर, टू एक्सप्रेस प्रॉपरली, दैट इज द प्रॉब्लम। ये देखिए 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 200 जा 200। if you increase more values of n, if you increase more values of n, your graph will be more closer to ideal. But again pay attention sir, प्रॉब्लम दिखा देता हूं आपको। क्या बनाया आपने? फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर है। क्यों फर्स्ट ऑर्डर? क्योंकि आपका एस का वैल्यू कितना है, एस रेज टू 1। आप यहां पे सिर्फ एक इंडक्टर लगा दीजिए, आपको मिलेगा एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा, ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा आपको। क्या मिला यहां पे? 2। कितना ऑर्डर हो गया? 2। जितना ज्यादा इंडक्टर कैपेसिटर उतना ऑर्डर बनना शुरू होगा। अभी आप सोचिए, एक ऑर्डर के लिए क्या लगाया? एक कैपेसिटर, 2 के लिए एलसी लगाया, 3 के लिए सीएलसी या फिर एलसीसी लगा दीजिए। 100 के लिए कितना एलसी 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 लगाना पड़ेगा? लीविंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा यार, नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली।